मैं पशु की तो दूर की बात करूँ, आजकल तो पशु को भी सुन के टीके लगाए जाते हैं। तो हमारा तो बॉडी सीलने वाला काम था, ले जाया गया है, मांस काटा गया। पहले मुझे नहीं पता लगा जब मांस कटा है, जब कटा है एकदम से एकदम दर्द हुई है। जब उन्होंने रील खींची है अंदर से, जब मुझे बहुत पेन हुआ है। करनाल के बस्तारा टोल प्लाजा पर लाठीचार्ज हुआ, जिस लाठीचार्ज में एक किसान की जो है नाक की हड्डी टूटी थी। सरदार गुरजंट सिंह जी इस समय मेरे साथ है, उनसे बात करेंगे कि कैसे क्या कुछ हुआ, कैसे क्या क्या मामला था, कैसे जो है लाठीचार्ज शुरू हुआ। उसके बाद जो नौबत ये आई कि जान बचानी मुश्किल हुई, जिसमें नाक की जो हड्डी तक टूट गई। और बात करते हैं। सत श्री अकाल वीर जी। सत श्री अकाल जी। आप जी किवें होया उदन दा, मतलब की माहौल सी उदन जिदन लाठीचार्ज होया, की मतलब सीगा भी ਤੁਹਾਡੀ ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ जी? बहुत बहुत धन्यवाद आप जी ਦੇ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਤਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਤਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਤਰਕ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲਾਈਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੇਟ ਸੀਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ਼ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਗੇਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਸਨ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਸਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਕਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦੇ, ਆਪ ਜੀ ਟੂਲ ਟੈਕਸ ਬਸਤਾੜਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਸਨ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ ਅਤੇ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਸਨ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ IG ਰੇਂਜ ਦੀ ਮੈਡਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। DSP SP ਸਾਹਿਬ ਨੇ, SDM ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾਲ ਜਾਓਗੇ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੀ ਜਾਓਗੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਉਹ ਪਲਟਾ ਮਾਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੋ ਹੈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਐਨ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਣਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਣਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਧਨਕੜ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਧਨਕੜ ਨੂੰ ਖਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਧਨਕੜ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਸ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੋਤੀਆਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਡਕੇ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝਿੱਗੇ ਤੱਕ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖੰਡਕਾ, ਕੁੜਤਾ ਅਤੇ ਧੋਤੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਦਮਾਲਾ ਵੱਜਿਆ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦਮਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਿਰ 'ਚ 2-3 ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਮੇਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਅੱਖ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਵੱਜਦਿਆਂ ਸਾਰ ਡੰਡਾ ਮੈਂ ਪੁੱਠਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਬੇਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਗੁਰਜੰਟ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ में बैठ जा। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੱਛਾਂ ਤੋਂ ਧਰੂ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ ਉਹ ਸੱਚੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਵਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੱਜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੱਜਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁੱਜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀ, ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀ, ਕੱਢ ਮੈਂ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਬਾਹਰ 'ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ
ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਜੋ ਕੰਮ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਰ ਪਾੜੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨੀਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਠੁੱਡੇ ਵੀ ਮਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਡੰਡਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਡੰਡੇ ਵੱਜਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। अब 3 दिन हो चुके हैं करनाल में आंदोलन को चलते हुए, धरना लगा के बैठे हैं, बड़े से बड़े नेता आ चुके हैं। एसडीएम की जो गिरफ्तारी की वो मांग है, सबसे बड़ी मांग है जो किसानों की, पर क्या लगता है आपको कि सरकार झुकेगी? क्योंकि 3 दिन में सिर्फ 2 बार बातचीत हुई है, वो भी बेनतीजा निकली है। 9 महीनों में 11 बार मीटिंग हो चुकी है किसान आंदोलन की। नरेंद्र तोमर है जो वो नहीं माना, लेकिन किसान भी दोबारा मीटिंग करने नहीं गए। किसानों ने कल आह्वान कर दिया था प्रशासन के सामने, अगर तो ये मांगे माननी है हमें मीटिंग में बुला लेना, अगर मांगे नहीं माननी तो हमें मीटिंग में मत बुलाना। हमारा प्रोटेस्ट ऐसे ही जारी रहेगा जब तक सेना के ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं होती, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। और जो हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया है उसके ऑर्डर दिखाए जाएं, और ऑर्डर में ये देखना है कि क्या लिखा हुआ था, क्योंकि आप कमर से ऊपर किसी पे लाठीचार्ज नहीं कर सकते। इसका जो ये फेस पे मारे गए हैं इसकी सख्त कार्रवाई होगी, और ये हम करवा के रहेंगे, पीछे नहीं। कुछ हमारे वकील भाई हैं जिनके ऊपर तशद्दुद किया गया, जो नॉर्मली वहाँ पे खड़े थे उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होंगे। हमारे वकील भाइयों का भी साथ है, सारी कम्युनिटी जिनकी की इंसानियत देखने को नज़र आई है। आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर के अंदर भी हिंदू मुस्लिम सब ने लंगर लगा रखा है, छोटे छोटे बच्चे जो हैं सेवाएं कर रहे हैं पानी की, ये एक इंसानियत है। सरकार जितना मर्जी जातिवाद फैलाए, पर ये जातिवाद ना फैलेगा, ना ये लोग अलग होंगे, ना कोई जट रहेगा ना कोई जाट रहेगा, सिर्फ इंसानियत ही नज़र आएगी। सारे एक ही लड़ी में एक ही माड़ा में परोए जाएंगे। ये वो देश के बच्चे हैं और वो नागरिक बन चुके हैं, वो इंसानियत आ चुकी है इनमें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरजंट सिंह जी। गुरजंट सिंह जी के विचार सुन रहे थे, आप सुन रहे थे। गुरजंट सिंह जी ने बताया कि जो है अस्त्र मेरे पास भी है, मैं भी निकाल सकता था, अगर कानून तोड़ना होता तो मैं भी तोड़ सकता था, मगर मैंने शांतिपूर्ण जो है वो प्रोटेस्ट किया, और शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करते हुए जो मैंने अपने किसान साथियों की जो जान बचाई। हो सकता था किसी अन्य किसान साथी की जो है जान जाए। धन्यवाद। लाठीचार्ज के बाद हॉस्पिटल में भी रहे हैं गुरजंट सिंह जी, और उसके बाद जो है जेल में क्या क्या इनके साथ जो हुई है, आखिर क्या हुआ है, पूरी की पूरी जो बातें हैं वो बातें पूछेंगे गुरजंट सिंह जी। हाँ जी, ये बताइए आपको किसी तरह से शोषित प्रताड़ित वगैरह किया गया है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा किया गया है, कम नहीं। 100 में से ये नहीं भी कि 90%, 99% प्रताड़ित किया गया, 1% किया। ऐसे किया गया है कि अगर मैंने बुलाया कि सर मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है, मेरी ब्रेन में पेन है, तो मेरी सांस की नली वाला डॉक्टर आ जाता है कि आपको सांस की नली में प्रॉब्लम है। अगर मैंने बोला कि सर गर्म पट्टी चाहिए, तो मेरे पास वाइट पट्टी भेज देनी, वाइट पट्टी जो होती है लगाने वाली वो भेज देनी। अगर मेरे पास कोई नर्स बीपी चेक करने आती है तो मेरे से बात करती है, आप कहाँ से हो, कैसे हो, लाठीचार्ज कैसे हुआ, तो उनके फ़ोन में जो मोबाइल होता है उनके उसमें रिकॉर्डिंग लगी होती है, वो बात कैप्चर करती है। अगर मैं रात को सोता हूँ तो मेरी वीडियो बन के पता नहीं कहाँ जाती है, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। अगर मुझे एक्सरे के लिए लिया जाता है कि तेरे एक्सरे होंगे, ये होगा वो होगा, MR कटी है, तो उसमें कुछ भी नहीं लिखा गया। बाजू की चोट नहीं लिखी गई, शोल्डर की चोट कुछ नहीं लिखी गई, सिर्फ ये टांगों की लिखी गई है, ये आँख की लिखी गई है। और टांगों की क्या, नाक की हड्डी टूटी है वो नहीं ना, उसकी हड्डी उड्डी टूटी हुई कुछ नहीं लिखी गई है, सिर्फ नॉर्मल लिखा गया है कि ये बिल्कुल ठीक है, किसान आंदोलन करके इसे नहीं, नॉर्मली इसकी आँख है, बिल्कुल ही इसकी आँख ठीक है। आज से 5 दिन पहले ही कल्पना चावला के डायरेक्टर की तरफ से पेपर में इसको शेयर कर दिया गया था कि ये लड़का ठीक है, इसे ले जा सकते हो। जो स्टिचिंग हुई है, मैं देख रहा हूँ कि स्टिचिंग हुई है क्या? हाँ जी, हाँ जी। इसका क्या कुछ? इसका स्टिचिंग ये हुआ है, स्टिचिंग जब हुई है, जब मुझे लेके आए हैं, तो ये मेरे पीछे भी एक भाई बैठा है, तो उसका ऐसे करा है कि जैसे एक बोरी सीलते हैं ना, बोरी, मैं पशु की तो दूर की बात करूँ, आजकल तो पशु को भी सुन के टीके लगाए जाते हैं, तो हमारा तो बोरी सीलने वाला काम था। ले जाया गया, मांस काटा गया, पहले मुझे नहीं पता लगा जब मांस कटा है, जब कटा एकदम से एकदम दर्द हुई है। जब उन्होंने रील खींची है अंदर से, जब मुझे बहुत पेन हुआ है कि बहुत ज़्यादा
मतलब कि मेरी आवाज़ें चीखें निकली हैं कि ये आप क्या कर रहे हो, आपने तो सुन का टीका ही नहीं लगाया है। तो एकदम होश आ गया, यानी बिना सुन का टिक्का लगाया कि बिना सुन, हाँ जी, बिना सुन का टीके लगाए स्टिचिंग कर दी है। इसके अलावा कोई और? और इसके अलावा यही बस कभी इस हॉस्पिटल में, कभी यहाँ लेके जाना, कभी वहाँ लेके जाना, एक्सरे उतरवाते रहे हैं, लेकिन मुझे कोई भी रिपोर्ट नहीं दी गई। मुझे कुछ नहीं बताया गया कि आपकी रिपोर्ट में ये आया है, आपके ब्रेन में प्रॉब्लम है, आपके शोल्डर में है, आपकी कलाई में है, या आपके लेग पे है, क्या चोट है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं जानता। आपके पास केयर टेकर रखा हो हॉस्पिटल में, या कोई फैमिली पर्सन आपके साथ हो? नहीं, फैमिली पर्सन तो था, नहीं, फैमिली पर्सन तो था, लेकिन फैमिली पर्सन की कोई सुनवाई नहीं थी। फैमिली पर्सन की कहाँ, जब मरीज की सुनवाई नहीं है तो फैमिली पर्सन की कौन सुनेगा वहाँ? जब सारा प्रेशर तो सरकार का है, खट्टर सरकार का सारा प्रेशर है। क्योंकि मैं हर बार आंदोलन में हमेशा आगे रहा हूँ, पहली बात है सब लोग आगे हैं, लेकिन मैं हमेशा आगे रहा हूँ। बिल्कुल सरकार के खिलाफ रोज़ का झंडा उठा रखा है, ब्लैक फ्लैग उठा रखा है, उठा के रखेंगे जब तक काले कानून रद्द नहीं हो जाते। बिल्कुल नहीं दबेंगे, चाहे जितने मर्जी लाठी डंडे मार लें, चाहे जो मर्जी करें। हम जबर का सामना जो है सब्र से कर रहे हैं और करते रहेंगे। आपको पता है कि सिख कौम के पास शस्त्र किस लिए होते हैं? अगर जुल्म होता तो हम ये निकालते हैं, लेकिन हमने अपने भाई समझा इनको, प्रशासन को अपने भाई समझा, क्योंकि किसानों के बच्चे हैं। हमने इनकी रिस्पेक्ट की, रिस्पेक्ट करने के बावजूद भी इन्होंने हमें ये नहीं देखा कि किसी को लाठी कहाँ लग रही है, कहाँ नहीं लग रही। इन्होंने अपने साथ अगर ऐसा होगा, कभी लाठीचार्ज दोबारा होगा यदि आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो? अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। अब सरकार समझ चुकी है, अगर होना होता तो कल हो जाता। सरकार को सबक सिखा देंगे, और अब हम भी इतने मतलब कि खाली हाथ नहीं जाएंगे। उस दिन तो हमारे हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन ये गुरु की दी हुई दात है, पर हमें इसे नहीं निकालना चाहते थे। ये वहाँ निकाली जाती है जहाँ से सब रास्ते बंद हो जाते हैं, लेकिन अपने हाथ में डंडा जरूर होना चाहिए। हर एक नौजवान को कहता हूँ, किसानी आंदोलन में आते हो, झंडा और डंडा तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। अगर तुम्हारे ऊपर कोई वार करता है तो तुम रोक पाओ आगे से। मारने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं रोकने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक मिनट में जो है ये बात बना देते हैं उठा के कि इसने मारने की बात की। मारने की बात नहीं करना है, मैं रोकने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अपनी सेफ्टी के लिए रोक भी तो सकते हैं ना हम डंडे को तो हम रोक सकते हैं। बाकी आगे ऐसी नौबत नहीं आएगी। सरकार को पता लग चुका है, सरकार के जो है कुर्सी खटखटा रही है, और सीएम थोड़े दिन में जाने वाला है, बस चेंज होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गुरजंट सिंह जी, जिन्होंने पूरी की पूरी आप बीती बताई। शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।